Hello everyone, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 12 English medium and this is the chapter number 1 accounting for share capital, and this is the chapter 1 of your 12th account part 2 textbook, and this is the lecture number 13 of this particular chapter. In the previous video we have understood an illustration based on combined topics like issued at par, uh, some installments are paid and some are not paid, then the forfeiting of the shares and reissuing of the shares. These kind of concept we have cleared in the last illustration. Today we are going to do another illustration based on some other concepts which we have already understood. Let's start with the new illustration. Students, this is the illustration which we are going to solve today. Let's read the illustration very carefully first. Illustration number 12. Dhyani Ceramic Limited issued 3 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 150 per share. Amount called up per share was as under. Means the value of the share was only 10 rupee and the premium which was called per share was rupees 150. That means the combined price including premium of a single share was rupees 160. In that 160 there is a face value of a share is rupees 10 and the rupees 150 is extra for the premium. Let's understand the installments. On application there were the amount called of rupees 74, on allotment rupees 44, on final call rupees 42. Means we just need to clear the amount called for the share and amount called for the premium. On application the amount for the share was rupees 4, on allotment 4 plus 40, that totals 44, and on final call 42, that means 2 plus 40, 70, 40 and 40. This is the amount of premium called on different calls. First one was application on rupees 70, allotment के टाइम पर 40 रुपीज़ और फाइनल कॉल के टाइम पे 40 रुपीज़. टोटल कर लो आप, कितना हो जाएगा 70 प्लस 80 150 हो गया प्रीमियम. और शेयर की जो प्राइस है 4 + 4 + 2, दैट मीन्स 10 रुपीज़ पर शेयर. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इतना हाई प्रीमियम से इश्यू हुआ है तो कितनी एप्लीकेशंस आई है. बराबर. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 3 lakh shares. All amounts due were received except final call on 2000 shares held by Vishal. Company forfeited Vishal shares after carrying out necessary formalities. Reissued those shares to Avni as full paid up at rupees 80 per share. स्टूडेंट्स यहाँ पर एकदम क्लीन एंड क्लियर है कि आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ पर फटाफट जो नेसेसरी एंट्रीज होती है वो आपको क्या करना है, पास करते जाना. ठीक है, पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. टोटल अमाउंट कितनी है, 3 लाख इश्यू हुए थे, 3 लाख एप्लीकेशन आए तो 3 लाख इंटू 74, 3 लाख इंटू 74, उतना पैसा आपको मिल गया. देख लो ये रहा. क्लियर है. 3 लाख इंटू 74 क्या कर देंगे, डेबिट. बराबर. क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि हम सेकंड एंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वी नीड टू ट्रांसफर द शेयर प्राइस टू द शेयर कैपिटल अकाउंट एंड अदर जो प्रीमियम की अमाउंट है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में अकाउंट में जाएगी. दैट मीन्स 4 रुपीज़ शेयर कैपिटल में और 70 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में. तो चलो देख लो, इसको डेबिट किया होगा पहले.
ये देख लो किया है 2,22,00,000 से, ये हो गया डेबिट। फिर शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए 12 लाख, 3 लाख इंटू 4। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितना जाना चाहिए 2,10,00,000। कैसे पॉसिबल है, तो 3 लाख इंटू 70 रुपये का प्रीमियम था एप्लीकेशन के टाइम पर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है एकदम। तो ये हो गई एप्लीकेशन की टाइम की एंट्री। अब अलॉटमेंट, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कोई भी टाइप का इंस्टॉलमेंट, एनी काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट और कॉल, whenever it is notified by due, the name of the installment is debited। मतलब जिस नाम से आप नोटिफाई कर रहे हो, जिस नाम से आप कॉल का मंगवा रहे हो शेयर होल्डर से, उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। मीन्स अगर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट के अगर मान लो ड्यू की आप नोटिफिकेशन देते हो, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हमेशा किसको क्रेडिट करोगे, शेयर कैपिटल को। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रीमियम की अमाउंट है तो वो किस में जाएगी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। तो देख लो अलॉटमेंट की एंट्री आपके सामने है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल कितना था, नोटिफिकेशन में बताना पड़ेगा ना कि 4 रुपीज़ शेयर का है, 40 रुपीज़ प्रीमियम का है। ठीक है, तो देख लो बताना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, तभी पता चलेगा। तो ये बता दिया हमने कि भाई इतना डेबिट है तुम्हारा। अब वो शेयर कैपिटल में तुम्हारा 12 लाख जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम में टोटल जाएगा 1,20,00,000, 3 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्रीमियम वॉज कॉल्ड ₹40 पर शेयर ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो पूरा पैसा मिल गया था। तो 1,32,00,000 जो है वो देख लो रिसीव हो चुका है बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब फाइनल कॉल का एक बंदा था विशाल, उसने पेमेंट नहीं किया, तो हम पहले नोटिफाई तो कर दे, नोटिफाई करो ड्यू बताओ। उस टाइम पर जो है अपने को पता नहीं होता कि कौन भरने वाला है, कौन पेमेंट करने वाला, कौन नहीं करने वाला है। तो फाइनल कॉल का आप पहले पहले आप नोटिफाई करो। तो नोटिफाई करने की एंट्री आपको बता चुका हूँ, जिस नाम से नोटिफाई करोगे उसको आप डेबिट कर दोगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। एक्स्ट्रा अमाउंट होगी तो जिसके नाम की होगी उसके नाम में जाएगी। जैसे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो सम में चेक करने का कि फाइनल कॉल में खाली शेयर की प्राइस है या और कुछ भी है। देखो 42 है, दैट मीन्स 2 + 40, तो 2 रुपीज़ तो शेयर कैपिटल में जाएगा और 40 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा। दिस इज़ द अमाउंट फॉर द सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल कॉल को आप नोटिफाई करने की एंट्री देख लो, ये रही इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब पैसा नहीं 2000 शेयर्स पर शेयर हमको कितना नहीं मिलेगा 42 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स 42 टूजा होता है 84 और 30, दैट मीन्स 84,000 हमको मिलेगा नहीं, बाकी पूरी अमाउंट मिलेगी। तो ये कॉल्स इन एड्रेस में आप डाल सकते हो इसको। तो देख लो फाइनल कॉल का पैसा इन्होंने नहीं डाला है, दैट इज़ गुड। बैंक अकाउंट डेबिट, जितना मिला है उतना डेबिट कर दिया है। जितना मिला मतलब ये जो है 2000 शेयर्स इंटू 42 कर दो, उतना नहीं मिला, बाकी का पूरा पैसा आपको रिसीव हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में इन्होंने 4 फीचरिंग किए है। क्या किया है, 4 फीचरिंग। तो 4 फीचरिंग में खाली आपको इतना ही देखना होता है कि कितना पैसा पेड है, कितना अनपेड है। तो फाइनल कॉल का 2 रुपये है जो पेड नहीं है, तो 8 रुपीज़ पेमेंट कर दिया है, बराबर 8 रुपीज़ का पेमेंट हुआ है, तो वो 4 फीचर में 8 जाएगा और 2 रुपीज़ जो है उनका पेमेंट नहीं हुआ, तो वो किस में जाएगा, फाइनल कॉल में। किस में जाएगा, फाइनल कॉल में। और फाइनल कॉल के टाइम पे स्टूडेंट्स एक चीज़ खास करके देखना, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। क्या देखोगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वो पेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो वेन एवर द शेयर्स आर इश्यूड विद द प्रीमियम
The most important thing to consider for the students is whether the amount for the premium is paid or not. तो प्रीमियम की अमाउंट पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ है, तो पेमेंट नहीं हुआ है। तो जब भी पेमेंट नहीं होता है तो वाइल फॉर फीचरिंग विद द शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ नॉट रिसीव्ड येट। देख लो, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर है, प्रीमियम कितना था इसका 40 रुपीज़, 42 टोटल था, उसमें 2 रुपीज़ जो है वो शेयर्स का था, टोटल 40 जो था वो प्रीमियम का था। तो 2000 इंटू 40 दैट मीन्स 80,000। शेयर फोर फीचर्ड 2000 शेयर्स का फोर फीचरिंग हुआ था, पेड अमाउंट है 8 रुपये पर शेयर, तो 16 हो गया। और जो शेयर फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा है, तो फाइनल कॉल का 42 रिसीव नहीं हुआ है, तो 2000 इंटू 42 दैट मीन्स 84,000। ठीक है, री इश्यू कैसे किया है इसको, तो री इश्यू का भी देख लो, 80 रुपीज़ पर शेयर, 80 रुपीज़ है। तो एक्चुअली में शेयर तो 10 रुपये का ही है, तो कंपनी ने एक्स्ट्रा कितने रुपीज़ लिए 70। तो शेयर जितने का है उतना शेयर कैपिटल में, बाकी का पूरा पूरा किस में जाएगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। तो देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स इंटू 80, तो 8 2 16 40 1,60,000, 1,60,000 शेयर कैपिटल में 10 रुपये जाएगा और एक्स्ट्रा का 70 रुपये जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर फीचरिंग का जो बैलेंस था इन द सेंस कितना है 16,000, वो कैपिटल रिजर्व में सीधा सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा। देख लो, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 16,000, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट इसमें प्रिपेयर करके दिए। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि लेज़र पोस्टिंग कैसे होता है। अगर आता है तो लेज़र पोस्टिंग कर दो, नहीं आता है तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको खास करके जर्नल एंट्री समझनी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।